अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक ने। ए कितने चले गए ने पिछू? ये किधर चले गए? मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। हाय, इंज हो ही नहीं सकता कि दूजी बार बंदा घर ना जाए। वो आ गए ने दोबारा। वापस की लैन गए हो हैं? डायरैक्ट कदी तुसी उथों निकल के डायरैक्ट गड्डी च जा सकते हो? अस्सलाम वालेकुम। बुढ़ा ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਹਮੇ ਕਰ ਦਿਆ ਨਿਕੰਮਾ ਗਾਲਿਬ ਵਰਨਾ ਆਦਮੀ ਹਮ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਸੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤੀ ਕਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਬੇੜੇ ਤਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛ ਘਰੋਂ ਲਿਆਈ ਸਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣੀ ਅੱਬੀ ਨੂੰ। ਚਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂ ਸੇਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਫਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾਸਨੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਚਲੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਜਾ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 2 ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲਾਣੇ, 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੱਕਰ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। 5 ਮਿੰਟ ਕਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਚੱਕਰ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਾ ਲਾ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਚੀਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਈਏ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਟੈਕਸੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ? 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਤੇ ਜਾਣਦਾ ही आजकल बहुत गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम लेने के बगैर तो वीडियो स्टार्ट हो ही नहीं सकती। बेशक मैंने आपसे पहले सलाम ले ली है। जितना सलाम वालेकुम लैन दा मेरे मियाँ नू चाह है ना, और मेरे बच्चों को भी वैसे ही आदत है। सलाम वालेकुम 5 मिनट के लिए अच्छी बात है, ये हम लोगों ने सिखाया तो बच्चों में आदत पड़ी है। वैसे मेरे मियाँ में आदत है तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो आदत आ गई है। की करन लग पे सी हैं? पैसे लैन लग पे सी? पैसे लैन लग पे सी? ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਸਾਸ। ਓਏ अस्सलाम वालेकुम। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਲੈ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਲਓਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਰਿਸ਼ਤੁੰਗਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਫਿਰਨੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਗਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਬਲੂਮ ਕੇਸਟਾਂ ਵੇਖੋ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕੇਸਟਾਂ। देखो बच्चे, अगर हम लोग बाहर गए होते हैं ना, मैं फ्लो मार्केट में आई हूँ। मैंने इस दफ़ा ना अलग साइड से वीडियो स्टार्ट की, अलग साइड पे मतलब चक्कर लगाया। ये वाला हिसाब के साथ कभी शेयर किया नहीं है। इन चीज़ों को देखना भी बड़ा ही मज़ा आता है ना। तो मेरी बात वही रह गई। मुझे बड़ी बहनें कहती हैं बाजी आप ना आधी बात करती हैं और फिर नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो पहली बात पूरी कंप्लीट किया करें। मैं अस्सलाम वालेकुम वाले टॉपिक से पूरी आ जावा, फिर मैं आपके साथ आगे जाके चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। मैं सलाम के ऊपर ये है कि सलाम लेना हमारा आपको पता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप जाते हैं ना बाहर तो हमें जानते भी नहीं है। फिर वो पास सुबह निकलेंगे तो वो मॉर्गन बोलेंगे, दोपहर को निकलेंगे तो हालो ज़रूर बोलते हैं। बेशक माइए बाबे जो भी अगर आपकी नज़र पड़ गई उनके ऊपर तो वो आगे से आपको ज़रूर सलाम करते हैं। हालांकि अस्सलाम वालेकुम करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी सुन्नत है कि मतलब सलाम
कि सलामती भेजे ताकि वो भी आप पे, लेकिन हमें वो चीज़ें बहुत कम है। अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं ना, कभी भी आपको रस्ते में जाते कोई भी नहीं है अस्सलाम वालेकुम बोलता, मार्केट में जाएं कहीं भी जाएं, आप मेरी बात पे अंदाज़ा लगाएं, मेरी बात पे सोचना ज़रूर जो मैं कह रही हूँ ना, कि अगर आप पाकिस्तान में होते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं भी होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको कभी भी किसी रास्ते में जाते बंदे ने या औरत ने, लेडीज़ ने आपको अस्सलाम वालेकुम बोलना है, नहीं बोलना, क्योंकि हम भी उधर जाके नहीं बोलते। क्योंकि आदत पड़ जाती है ना। यहाँ पे आप पास से किसी से गुजरते हैं ना, तो आपको वो मुंह से निकल आता है हालो, या वो देख रहे हैं तो वो हमें हालो बोल देते हैं। यकीन करें, मैं कल भी इस टॉपिक पे बात की थी कि मुसलमान ये लोग हैं, हम तो बस नाम ही मुसलमान है, हमारे अंदर काम काज कुछ भी नहीं है। तो खैर बच्चों को भी आदत डाली हुई है कि हमारे तो आदत है कि अगर हम कहीं गए हैं तो घर आए ना, तो खाली चाबी लगाई घर में आने की, जैसे जैसे बच्चे अंदर आते जाएंगे ऊंची आवाज़ से अस्सलाम वालेकुम करते हैं, खाली घर को भी वो सलाम करते हैं। ये बोला हुआ है मेरे मियाँ ने। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं कम बोलती हूँ, जैसे मेरे मियाँ ज़्यादा इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं। वो जैसे तैसे करके है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बच्चों को उन्होंने सिखाया है। मुझे तब जाके पता चला कि ये सारे चीज़ें अब्बा बताता है, क्योंकि बच्चे बात, मेरा जो बड़ा बेटा वो चीज़ें बड़ी याद रखता है, तो वो अक्सर बात करता है, ये मुझे बाबा ने फलानी जगह पे बात नसीहत की थी, ये मुझे फलानी जगह है। मैं क्या सारी अब्बे ने तेन याद करवाया, मैं कख भी नहीं याद करवाया। तो सही बात करते हैं बच्चे, क्योंकि मेरी हम लोग वो माएँ जो है ना, वो भी और तरह की तरबियत करती हैं। ये जो छोटे छोटे चीज़ें बाप ध्यान देते हैं ना बच्चों के ऊपर, कसम से ये अल्लाह ताला करे सबके घरों में ऐसे ही वालिद हों, ऐसे ही हस्बैंड हों, ऐसे ही बाप हों जो अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें कि किस चीज़ में कमी आ रही है और किस चीज़ में कमी नहीं है, तो उस पर ध्यान देना बाप का फ़र्ज़ बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मेरे अंदर आई हैं, वो मेरे मियाँ से ही आई हैं, और मेरे बच्चों में आई, वो मेरे मियाँ से आई हैं। जो अस्सलाम वालेकुम करना, किसी को जाते हुए हालो करना, मेरे अफान को, मेरे बच्चों को ये भी आदत है कि अगर रास्ते में जाता कोई बूढ़ा सा कोई सामान भी उठा के लेके जा रहा है, अफान की आदत है उसको घर तक छोड़ के आता है, अगर वो उसको जानता है। हाँ, उसकी गाड़ी तक वो ज़रूर जाता है, अगर वो कहता है ना, कोई थोड़ा आके बताता भी होता है कि मुझे वो एक उम्मा मिली, उम्मा मतलब कि बुजुर्ग मिली थी, तो मैंने उसका बैग उठा के उसके बैग गाड़ी में छोड़ा, तो वो इतना मुझे प्यार कर रही थी। तो अच्छी बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के अंदर आती हैं। एक चीज़ अगर आप सीधी वाली सिखा देंगे ना, बच्चा खुद उस लाइन में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज की नसीहत काफ़ी ज़्यादा हो गई। बड़ा दिल करता है कि कभी कभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसा टॉपिक मिले जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और जो हम लोग करते हैं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो अभी आई हैं, जिनके अभी बेबी हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी बच्चे जिनके बच्चे मेरी बच्चों के एज के हिसाब से हो रहे हैं। तो वो यही पूछते रहते हैं, जैसे बेटियों की तरबियत कैसे करती हैं, बच्चों के कैसे करती हैं। मैंने बोला है ना, तरबियत कोई एक ख़ास फार्मूला नहीं है कि बैठ के तोते की तरह समझाना है आपने, नहीं, आपने करके दिखाना है। प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चे फॉलो आपको करेंगे ना। ये नहीं कि आप खुद कुछ भी ना करें और बच्चों को कहें कि बच्चा 100% वो काम करे, और आप उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं और बच्चों को तरबियत नसीहत कर रहे हैं, ये काम नहीं करना, ये बुरी बात है, और आपको ये नहीं पता कि आप भी वो काम कर रहे हैं। मैं बुरे में चीज़ मामा है, देखो ए वाला की है मुझे ਆ ਹੋਇਆ ਮੋਚੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਕੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾੜਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਲੀਡਰ ਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੀ। चलें जी, आज का टॉपिक तो मैं इधर ख़त्म कर देती हूँ। अब आगे चलते हैं। फ़्लो मार्केट में पहुँच गई, मैंने आज लेने जाना है, मैं लेने आई हूँ कारपेट ना। बच्चों के कमरे खाली हैं, उनके अंदर टैप छोटे छोटे जो होते रैक वो डालने हैं। किचन का मैंने लेना है, और कोशिश करनी है मैंने कि मैंने अपने बेडरूम के लेने हैं। पूरे घर के टैप जो ना वो ख़राब हुए पड़े हैं, तकरीबन मेरे कमरे में तो है ही नहीं है, लुकमान के कमरे में भी नहीं है, और मिशाल के कमरे में भी नहीं है, ऊपर खाली है बिल्कुल। तो मैं आगे आगे करती जा रही थी कि अच्छा फ़्लो मार्केट से, क्योंकि पोको मार्केट की इंतहा आग लगी हुई है, इतनी महंगी चीज़ें ने कि दिल ही नहीं करता इन मार्केट में जाने का। तो मैंने कहा चलो इस मार्केट में 2 दफ़ा गई हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ पे सस्ते थे, तो मैंने इस दफ़ा सोच के आई थी। पूरा महीना मैंने इंतज़ार किया कि मेरे वहाँ से कारपेट उठा के लेके आने हैं। तो वॉन सिमर का मतलब टीवी लाउंज का भी लेने हैं, लेकिन अगर मैं देखूँगी जितने के मेरे को पैसे ने ना, वो हिसाब नाल अगर आया तो फिर मैं ले आऊँगी, नहीं तो बाकी चीज़ों के हम ना वो उठा लेंगे। ऐसा नहीं कि बर्डन ही डाल लेना है कि नहीं नहीं हूँ असं लैके जाना वे, बंदा नेक्स्ट मंथ कर लेता है। ऐसे डिवाइड करके काम करेंगे तो सौखे रहेंगे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, अगर तो जो मैंने लेने हैं वो उस पैसे
जितने मैं लेके गई हूँ ना, मेरे बजट है उस बजट में वो अगर आ जाते हैं और मेरे पास पैसे बच जाते हैं, फिर मैं अपने टीवी लाउंज का लूँगी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ लूँगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरा जो सोच थी, जो मेरा बजट था, उस बजट में मेरे सारे ही पूरे पूरे 10 यूरो बचे हैं। लेकिन उसके अंदर मैंने कंबल भी लिया फ़ान का, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बड़े ही अच्छे मुझे कारपेट मिले हैं और मुझे जो मैं चाहती इतने वैसे वाले मिले हैं, इतने साइज़ के मिले हैं, बड़े साइज़ के। कल इन टाइम मुझे लेने थे, वो मुझे मिल गए हैं, तो मैं आपके साथ घर में जाकर ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं खुद ही यहाँ पे पसंद कर ली हूँ। अच्छा, ये बड़ा बोलते हैं सेल है, सेल है, सेल है। कोई सेल नहीं होती, सुबह भी इनकी यही प्राइस होती है, शाम को जाएंगे तब भी यही प्राइस होते हैं। ये झूठ बोलते हैं अक्सर, ये जो फ्लो मार्केट में बैठे होते हैं ना, सुबह ये प्राइस थी और शाम को ये प्राइस है। मैं एक लेके आई हूँ छोटा पीस किचन के लिए, तो मेरे सुबह जो ना मैं जिठानी गई थी तो वो लेके आई है, तो क्योंकि एक ही मार्केट है इस एरिए में ना, तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा पूछा कि आप सुबह टाइम किए थे, कितने का आपको मिला? तो वो कह रही इतने का। मैंने कहा बेड़ा तरजे मुझे शाम को हम गए तो कह रहे हैं सुबह हमने 30 यूरो का दिया था, 20 का, और अब हमने 10 का लगा दिया है। मैं कितने झूठे हैं। सेम प्राइस में सुबह थी, सेम प्राइस सेकंड टाइम थी। ऐसे फजूल सच्ची कोई सेल नहीं होती इनकी, वही प्राइस होती है जो सुबह आती है वही सेकंड टाइम होती है। ऐसे पागल बनाते रहते हैं लोगों को। तो यहाँ पे जायनमाज बहुत अच्छे मिल रहे थे, 5-5 यूरो के। ये देखिए जायनमाज है, खुले वेलवेट टाइप ना, 5 यूरो के क्या आता है। इतना खुले डुले जायनमाज लगाए हुए थे, मेरे पास अभी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने लेने हैं तो जायनमाज आराम से यहाँ से ईजी मिल जाते हैं। तो यहाँ से कारपेट पसंद कर के पैसे दे के लपेट के हम यहाँ पे रख आए हैं। मुझे ये तो इतने तो उठाए नहीं जाने, गाड़ी पास लेके आते हैं, ऐसा ऐसा हम बाहर निकलते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो फिर हम आराम से रख लेंगे। तो उसने कहा था 1 घंटे के लिए आप फिर लें, कोई मसले वाली बात नहीं, हम इधर ही हैं, तो आप जब गाड़ी लाएंगे तो ले जाना। तो अभी जो हमारी आधी मार्केट रह गई तो वो हम घूम फिर रहे हैं। कुछ चीज़ें लोगों ने उठानी शुरू कर दी थी, क्योंकि हम ज़्यादा 2-2:30 बजे गए थे और 4 बजे तक तकरीबन ये ख़त्म हो जाते। कल जिन्नी गर्मी सी ना, उन्होंने मिला था पहले ही ठप्पना शुरू कर छड़िया सी कि बहुत गर्मी सी, कल बहुत गर्मी थी। तो इनकी हिम्मत है बेचारों की, इन्नी सूरज चढ़े दे विच बैठे सन। तो खैर रोज़ी रोटी कमाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम लोग घरों में जो औरतें होती हैं ना, बैठ के ना बस डिमांड कर देती हैं। तो खैर इनके पास गिलास बड़े, जो 6 यूरो के 6 गिलास थे, बड़े प्यारे गिलास। मैं क्या कहते हैं, गिलासों को ना बड़ा ही मेरे घर में वो पड़ा हुआ है स्टॉक, तो अभी अच्छे लग रहे हैं। ये तो पड़े लगे ही रहते हैं, ये नहीं कि आज लगने तो कल नहीं आने या नेक्स्ट मंथ नहीं आने, ये होते ही होते। इस दफ़ा ये जो हुआ है ना फ्लो मार्केट में फलों का और सब्जियों का इजाफा हुआ है, नॉर्मल ये स्टॉल नहीं होते थे, इस दफ़ा हुए हैं। काफ़ी फ़्रेश सब्जियां भी लगाई हुई थी और फल भी लगे हुए थे, जूसेस वगैरह भी फ्रेश निकाल के दे रहे थे। तो ये मुझे लगा तो ये अच्छी बात है। एक्स्ट्रा जो इन्होंने इधर स्टॉल लगाए, ये मुझे बड़ा प्यारा ट्रे लगे थे, पर मेरे मियाँ बोले ला पे ये रखना की तू। मैंने कि जैसे उनके सवाल सुना ना, मैंने वापस ही रख दिया। मैं क्या तुसी उत्थे रख दो, मैं जिहदे च कुछ नहीं ना रखना, फिर इन्होंने तुसी वापस ही रख दो। है बड़ी प्यारी थी, रोस्ट वगैरह रखने के लिए, शामी कबाब रखने के लिए, ऐसे कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। जो चीज़ घर में हो तो बंदे के आइडिया आ ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे मुझे पूछा ना, तो मैंने वापस ही रखना मुनासिब समझा, बेहतर है। तो यहाँ पे मैं अभी ऐसा इस एरिया में ना सिख भाई थे, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई थी, पेचकस और लीड्स वगैरह और चार्ज वगैरह। ये सारे स्टॉल जो है ये मेरे मियाँ का फेवरेट है। हर डब्बा इन्होंने फोड़ना, बेशक जितनी मर्जी गर्मी है, जितनी मर्जी ऊपर धूप पड़ रही है। और ये सारे जितने डब्बे थे ना, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं छाँव में खड़ी थी, और ये वाले डब्बे उन्होंने एक एक करके फोड़ा था। वहाँ इतनी प्राइस भी नहीं थी, 1 यूरो 1.5 यूरो की कीमत हो तो फिर आपको पता है बंदा देख। या मैं सब्जियां देख रही थी, फ्रेश सब्जियां थी, फल थे। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं। अफान का कंबल आया ना, वो मैंने बड़ा मजा आया। नहीं बड़े सोहने लग रहे ने जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ हैं बहुत प्यारे ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਤੇ अगर मार्केट ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ एक आना सी फुल साइज ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। बहुत अच्छे मिल गए ने, चुक लोगे। चले जी घर पहुंच गए हैं। ये टैप साथ साथ डालती जाऊंगी, साथ साथ कल मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे दे इजाज़त, वापस आऊंगी कल। अल्लाह हाफिज़।